In this video, we will cover most important point of molecular biology. तो आज हम molecular biology कर रहे हैं यहाँ पे. चलिए, molecular basis of inheritance. Okay, nucleic acids are long polymer of nucleotides. DNA was derived from RNA, मतलब पहले RNA था, उसके बाद DNA बना. और जो जो DNA RNA के लिए कोड करता है उसको हम लोग नॉर्मली जीन भी बोलते हैं. तो जीन एक्चुअली DNA का सेगमेंट है, याद रखिएगा. नाउ इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्राइब्ड mRNA कैन डायरेक्टली बी ट्रांसलेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है. प्रोकार्योट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो सकता है. इसमें आपको स्प्लाइसिंग जैसा जरूरत नहीं पड़ेगा. इन यूकार्योट द जीन इज स्प्लिट. याद रहेगा, यूकार्योट में जीन स्प्लिट होता है. क्वेश्चन आ सकता है. टीआरएनए एक्ट एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल. टीआरएनए कैसा काम कर सकता है? एडेप्टर मॉलिक्यूल के जैसा काम कर सकता है. ओके, द साइट ऑफ ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम. याद रहेगा, लाइफ बिगेन अराउंड आरएनए. याद रखिएगा, लाइफ बिगेन अराउंड आरएनए. In bacteria, more than one gene is arranged together. Very important term. In bacteria, more than one gene is arranged together. DNA fingerprinting works on the principle of polymorphism in DNA sequence. So DNA fingerprinting work on polymorphism in DNA sequence. 99.9% of base sequence among human is same. Very important. 99% of the base sequence human में same है. The bulk DNA forms major peak in the DNA fingerprinting. क्वेश्चन आएगा कि मेजर पीक कौन बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो बल्क डीएनए मार देना. सैटेलाइट सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सैटेलाइट सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ सैटेलाइट डीएनए आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन. याद रहेगा, आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, भूलना मत. द VNTR variable number of tandem repeats belong to a class of satellite DNA referred to as mini satellite. So VNTR belong to mini satellite. The size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 kilo base pair. The human genome contain 3164.7 million base pairs. याद रहेगा. The largest gene human का dystrophin होता है, उसके पास 2.4 million bases है. Almost all, मतलब 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all people. The functions are unknown for over 50% of the discovered genes. Less than 2% of the genome codes for protein. Very important data. Scientists have identified 1.4 million location where single base DNA differences. ठीक है, याद रख लीजिएगा, जहाँ पे single base DNA difference होता है. Okay, chromosome 1 has the most gene 2968. Chromosome Y has the fewest gene 231. The commonly used hosts were bacteria and yeast, and the vectors were called as BAC and YAC. What is BAC? Bacterial artificial chromosome, and YAC yeast artificial chromosome in HGP. ठीक है, Human Genome Project. Sanger is also credited for developing method for determination of amino acid sequence in the protein. तो ये जो सैंगर जी थे, इनको क्या मिला? अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिटर्मिनेशन प्रोटीन का इनके पास है, कि इनको क्रेडिट मिला हुआ है. द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006. मई 2006 में ओके क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुआ. कैनियोरैप्टिस एलिगेंस इज ए फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The HGP Human Genome Project was a 13-year-old project coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health. During the early years of HGP, Wellcome Trust became a major partner. Wellcome Trust कहाँ का था? UK का था, United Kingdom. Okay, HGP was closely associated with rapid development of new area in biology called as bioinformatics. तो HGP is related to bioinformatics. HGP project was completed in the year 2003. लेकिन पहला जब क्रोमोसोम नंबर 1, एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 1 याद रखिएगा, वो सीक्वेंस कब हुआ था कंप्लीट? ओके, मई 2006. याद रहेगा. द ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 का पावर 9 बेस पेयर. याद रहेगा. एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग इज रिक्वायर्ड इज ओके, कितना हो जाएगा? 3 बेस पेयर, $3 पर बेस पेयर, $3 पर बेस पेयर. तो इससे भाई बहुत ज़्यादा दाम पड़ जाता. राइट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज आल्सो कॉल्ड एज ए मेगा प्रोजेक्ट. रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन. भूलना मत, इट इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन. लैक ओपेरॉन इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन. याद रखिएगा, तो लैक ओपेरॉन में बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन दिखता है.
द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है, रिप्रेसर जो प्रोटीन है वो किससे ज्वाइन करेगा? ऑपरेटर रीजन से, भूलना मत। एलोलैक्टोज इज एन इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन। लैक्टोज भी हो सकता है, एलोलैक्टोज भी हो सकता है। अगर ट्रू इंड्यूसर पूछा जाए तो एलोलैक्टोज मार के आएगा। ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। हर समय थोड़ा सा लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन लैक ओपेरॉन का होना ही चाहिए प्रेजेंट। ठीक है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज, तो सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पे? एक्चुअली बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए लैक्टोज है। याद रहेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहाँ से निकलता है? लैक जेड जीन से। इसको याद रख लीजिएगा। लैक जेड, वाई और ए। जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से तुम्हारा परमिएज और तुम्हारा ए से ट्रांस एसिटाइलेज। क्वेश्चन ओके, 42 नंबर पॉइंट। द वाई जीन इन द लैक ओपेरॉन codes for permease which increases the permeability of the cell to beta galactosides। साइड्स, बीटा गैलेक्टोसाइड का मतलब होता है जैसे तुम्हारा जो ऑब्वियसली लैक्टोज हो गया, ये सब तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइड है। ठीक है, भूलना मत। साइड बोला मतलब शुगर, राइट। In prokaryote, the control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression। तो predominant site control of gene expression कौन सा है? The rate of transcriptional initiation, जरूर याद रखना। ठीक है, the control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for the control of gene expression। In the eukaryote, the gene regulation could be exerted at transcriptional level, formation of primary transcript, याद रख लीजिएगा। ठीक है। In eukaryote, the regulation could be exerted at transport of mRNA from nucleus to cytoplasm। तो इधर के लेवल पे भी लगता है। कहाँ पे? जब आप mRNA को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, वहां पे भी रेगुलेशन होता है, जीन रेगुलेशन, राइट। ओके, UTR, untranslated region are required for efficient translation process। The UTR are present at both 5' end, मतलब होता है before the start codon, and 3' end मतलब after the stop codon। ओके, दोनों जगह रहता है। उनका रिक्वायरमेंट क्या है? एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन, 80 डिफरेंट प्रोटीन। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। राइबोसोम भी कैटलिस्ट जैसा काम कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी हाई पोटेंशियल क्वेश्चन जोन, राइट। 23S rRNA, ओके, इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम, याद रखिएगा। 23S rRNA, राइबोजाइम helps in the formation of peptide bond। formation of peptide bond requires energy, मतलब ये एक active process है। the order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA, messenger RNA। there are no tRNA for stop codon। तो stop codon के लिए tRNA नहीं है। tRNAs are specific for each amino acid। हर एक amino acid के लिए tRNA specific होता है। the secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf। तो ये 2D स्ट्रक्चर आ गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला गया क्लोवर लीफ है। 3D स्ट्रक्चर एल शेप होता है, भूलिएगा मत। tRNA is a compact molecule which looks like inverted L। very good। tRNA is also called as sRNA, soluble RNA। insertion और deletion of 3 और its multiple bases, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, 3 और its multiple bases insert और delete in one or multiple codon, रीडिंग फ्रेम रिमेन सेम, क्योंकि आप ट्रिपलेट को डिलीट कर रहे हो, इसके कारण आपका फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ओके, फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है तो उसके बाद एक्चुअली आपका रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम। 1 या फिर 2 बेस अगर आप इंसर्ट या डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज ऑन द सिंगल बेस पेयर in the gene for beta globin chain that result in the change of amino acid residue glutamate to valine। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूटामेट गोज, वैलिन को वेलकम किया जाता है, वैलिन आ जाएगा वहाँ। ठीक है, तो बीटा ग्लोबिन चेन याद रख लीजिएगा। ओके, सिंगल बेस पेयर इन द जीन। ओके, द कोडॉन इज रेड इन द mRNA इन ए कंटिगुअस फैशन विथ नो पंक्चुएशन। तो यहाँ कॉमा लेस होता है, ये चीज याद रखिएगा। ट्रिपल यू, यू 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 कोड फॉर फिनाइल एलानिन, PHE। The codon is triplet। 61 codon code for amino acid। The genetic code is nearly universal with some exception। Severo-Ochoa enzyme is polynucleotide phosphorylase। Severo-Ochoa enzyme, okay। Now, Severo-Ochoa enzyme is helpful in polymerizing RNA with defined sequence। तो Severo-Ochoa enzyme का काम क्या है? It helps in polymerizing RNA, right। Now,
चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं मार्शल ने ओके क्या पूछा गया, मार्शल निरेनबर्ग ने क्या दिया था, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। हरगोविंद खुराना जी ने सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल, तो आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय हरगोविंद खुराना। निरेनबर्ग ने किया सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट इन बैक्टीरिया। और इसी के साथ आपको मैंने 72 पॉइंट कवर, 72 पॉइंट, ऑलमोस्ट 70 प्लस पॉइंट कवर कराए। थैंक यू सो मच। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, आई होप यू विल क्रैक इट दिस टाइम। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ मिस्टर मेडिको।